Hello students, so in my last video I have explained you some basic etiquettes that you have to follow when you are entering into an interview. So during the interview also, and there are things that will determine your characteristics and your personality. The interviewer would be happy if you behave with proper etiquettes. And today in this video I'm going to tell you some basic things that that you have to keep in mind before you go into the interview. These are specifically how to answer the questions during the interview. So think of the interview as a sales meeting where you yourself are the product as well as the salesperson. That means you have to sell yourself, you have to sell your qualities to the company or to the HR who is sitting in front of you, so that he or she realizes that you are a valuable product for them or for their company to utilize, or you are as an asset that they can utilize. So basically, all the questions that you are asked during the interview revolves around the question, why should we hire you? This question is answered from each and every question that you are asked, from your behavior, from your attitude. Each and everything is revolving around this one, why should they hire you? So preferably, you should be sticking to your qualifications, experience, skills, motivations. These are the only thing that they want to know about. Being a fresher, आपके पास experience शायद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास qualification है, skill set है, obviously motivation है कि क्यों आप कोई काम करना चाहते हैं, what motivates to get hired in that company, to work at that particular position. वो जो जॉब एप्लीकेशन आपने डाला था उसके लिए क्या मोटिवेशन था आपका, एक बेहतर तरीके से आप उसे बताते हैं इंटरव्यू में, और उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो ज्यादा बेहतर है. And for the preparation, if you are obviously, if you are well prepared and if you feel confident in yourself, the interview will go well. But just preparing does not helps you to attend the interview comfortably. So for that you have to take care of a lot of features here. So listen to the questions of the interviewer, that is most important, because as I've told you in the last videos also, that when you do not listen to the questions, sometimes you know the answer, but due to misinterpretation or some misunderstanding, you might not be able to answer the exactly like the interviewer wants you to answer. जिस तरह एक इंटरव्यूअर चाहते हैं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर करें, वो आप तभी पता लगा पाएंगे व्हेन यू लिसन टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन. पूछने का तरीका होता है, या जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्या जानना चाह रहे हैं वो, ये आपको पता रहना चाहिए, तभी आप उनके हिसाब से आंसर कर पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू द क्वेश्चंस वेल, एंड एग्जैक्टली आपको जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो भी पता करना है. फॉर एग्जाम्पल, दो तीन क्वेश्चन जो हैं सिमिलर पूछे गए हैं या एक ही सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे कौन सी क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो आपसे क्या आंसर जानना चाह रहे हैं. समटाइम्स, एज आई टोल्ड यू, द इंटरव्यूअर इज नॉट सिटिंग देयर टू रिजेक्ट यू, ही वांट्स टू एक्सेप्ट यू इफ यू गिव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ इन द इंटरव्यू. तो आपको वहां पर ये नहीं सोचना है कि इंटरव्यूअर अगर ऐसा थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसका मोटिव आपको रिजेक्ट करना है. नहीं, वो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है ताकि वो आपके सारे स्किल सेट को, सारी खूबियों को अच्छे से निखार के आपके सामने भी ला सके. तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं. तो क्वेश्चन सही से सुनिए, समझिए कि क्यों वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आखिर वो जानना चाह रहे हैं. एंड जब भी आप आंसर करें, सिर्फ आंसर करना ही काफी नहीं है, उसे एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करें. वो आंसर जो होगा, आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, you should be answering it into a positive attitude, with a positive attitude. Positive attitude means sometimes you are asked a situational question and you have to tell whether how, or how you will react, or what exactly the actions that you will take. So those actions or those behaviors should be in a positive sense, like
यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी द राइटिएस्ट वन, लाइक आपको हर जगह जो है सच का परचम नहीं लहराना है, तो आप वो करिए जो सबके बेनिफिट के लिए अच्छा हो, या जो सही है, जो एक्शंस वहां पर आपको एज अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी लेना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना है। बस उतना चीज का आपको हर जगह जो है पूरी तरह ये नहीं साबित करना है कि दूसरा पर्सन जो गलत है उसको हम पूरी तरह trash out kar de just because he has done something wrong. It may be because of some mental issues, it may be because of the stress, it may be because of the misunderstanding or something. तो आपको ये देखना है कि आप बिना जज किए जो है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप बिना जज किए किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को किस तरह उसके एक्शन से आप रिएक्शन देते हैं, क्या सिचुएशन के हिसाब से आप वहां पर डिसीजंस लेंगे। तो इट इज वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल दैट यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव लाइट इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर। एंड जो भी आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें ये आपको बताना है कि आपका एटीट्यूड तो हमेशा अच्छा रहना ही चाहिए। आप विलिंग टू वर्क है, मतलब जो भी काम दिया जा रहा है आप वो काम करना चाहते हैं। जो जॉब प्रोफाइल अप्लाई की है आपने, वो बहुत सोच समझ के की है, क्योंकि आप वो काम करना चाह रहे हैं इसलिए दिया है। आप लर्न करने की ईगर हैं, क्योंकि आप फ्रेशर होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस भी हैं। अब एक्सपीरियंस है तो जो पर्सन एक्सपीरियंस के बाद भी किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज लुकिंग फॉर अ बेटर सिचुएशन, ही और शी इज लुकिंग फॉर ग्रोथ इन हिज और हर पर्सनल स्किल सेट और मोटिवेशन। तो कंपनी स्विच करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि अपनी क्वालिटीज का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है पुरानी कंपनी में, या फिर आपको जो है पर्सनल ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो आप लर्न करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर वर्जन में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये आपको अपने इंटरव्यू को समझाना है। और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस लाइक जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आपने जैसे तैयारी की है तो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे की होगी, तो वो पैटर्न जो है इंटरव्यूअर फॉलो करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। सो यू नीड टू बी स्पेसिफिक दैट वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर रहनी चाहिए कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लें तो आप जो है आंसर कर पाए। एंड इफ यू आर अनश्योर, लाइक आपको लगता है कि ये आंसर आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आप अनश्योर हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो आप हेजिटेट बिल्कुल ना करें, आप क्लैरिफिकेशन के लिए पूछिए इंटरव्यूअर को। बिकॉज जो भी क्वेश्चन वहां पर रहेगा उनको वहां पर आपको समझना है, और आपको भी उनका क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्वेश्चन समझना है। तो आपको वहां पर क्लैरिफिकेशन बोलना है कि सर मुझे ये क्वेश्चन जो है, please clarify this question much more, or I am not able to understand what to answer in that question, so please simplify this question for me। इस तरह का जो है क्लैरिफिकेशन आपको मांग लेना है। और कोशिश करिएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में ये भी कहा था कि इंटरव्यूअर जो होता है कई बार आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने तरीके से इंटरव्यू को जो है डायरेक्शन दे। कभी कभार वो आपको चॉइसेस देगा कि ऑप्शन ए बी वट एवर यू हैव टू चूज, एंड you have to be very careful while choosing those optional which you are provided in the interview. So if the situation comes when you are not able to answer, or you know that you have the choice to revert back to the question, to some other question, or you can just say that I am not comfortable answering this question, तो ये personalization आपको करना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो होता है ये दिखाता है कि आप कितना ज्यादा खुद को सेल्फ कंट्रोल में रख सकते हैं। आपका जो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर पुटिंग फॉरवर्ड ऑन द टेबल इज वेरी स्पेसिफिक, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, नॉट द ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू स्पीक। तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है कि कितना इंफॉर्मेशन आपको देना है, कितना जरूरी आपको लगता है उतना ही आप दे रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें पता चलती हैं। ऑल्सो प्लीज अवॉइड मोनोसिलेबिकल आंसर, येस नो, इस तरह के आंसर आप नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि वहां से अगर पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड दैट इज डू यू हैव एनी लीडरशिप क्वालिटीज, प्लीज डोंट आंसर yes, just speak that yes I, like you can start the question answer with a yes, but do not stop at yes. Yes, I have some qualities from the leadership skill set, and I have these qualities, I have shown these qualities in this situation। इस तरीके से आंसर करिए। मतलब आपका आंसर जो है वो पूरी तरीके से उसको समझ में आना चाहिए, इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए, इस तरह आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। ओके। एंड
ऑल्सो वन क्वेश्चन टू अवॉइड, जब आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, डू नॉट आंसर डायरेक्टली। ठीक है, वो आंसर आपको तब करना है जब आपको जॉब ऑफर कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन कॉल्ड एंड टोल्ड दैट यू हैव क्वालिफाइड योर जॉब इंटरव्यू एंड they will like to hire you, and then you have another meeting with the HR to discuss the terms and condition for your job that you are being selected for. उस दौरान आप अपना जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए आप नेगोशिएशन करिए। इफ दे आर प्रोवाइडिंग लेस, इफ यू फील लाइक इट इज लेस, यू कैन जस्ट से दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच। तो वो सारी चीजें आपका सिलेक्शन होने के बाद होती है। बट वाइल यू आर इंटरव्यूइंग फॉर द सिलेक्शन, तो उस दौरान ये क्वेश्चन जो है आपको स्पेसिफिक नंबर्स के थ्रू आंसर नहीं करना है। जस्ट टेल देम that I have the expectancy that according to your market value, you will provide me the salary that is for the position it is applicable. जितना भी वहां पर पोजीशन के लिए जरूरी है, आपका एक मार्केट स्ट्रैटेजी आपको रखना है, एक मार्केट वैल्यू प्रेजेंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी का ये पोजीशन जो है वो उस पोजीशन पे एक पर्सन वर्क कर रहा है तो बहुत कम सैलरी में कर रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ लाइक रिडक्शन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो उस तरह से आपको जो है क्वेश्चन डाइवर्ट कर देना है, डायरेक्टली इसको आंसर नहीं करना है। कोशिश करिए अवॉइड करने का जितना आप कर सकें। एंड जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, जब ये इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि उनके लिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, कभी भी नो मैम नो सर नहीं बोलना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस विद योरसेल्फ। कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में तो जस्ट आस्क कि सर व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और या फिर आपको अगर लग रहा है कि इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, सिचुएशनल क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया था या आपने आंसर नहीं कर पाए अच्छे से, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर इफ आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन सम अदर इन सम अदर इंटरव्यू, और if I'm like to answer this question after my selection also in some other interview, please tell me how to answer this question, or what would an interviewer expect to get the answer from myself from this question। तो इस तरीके से जो है, जो भी क्वेश्चंस आपने आंसर नहीं किए हैं, आप इंटरव्यूअर के माइंड से जान सकते हैं कि वहां पर इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्टेशन लेके वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऑलवेज एक क्वेश्चन प्रिपेयर आपका रहना ही चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन आप पूछिए। इट इज अ काइंड ऑफ इट इज अ काइंड ऑफ थिंग दैट विल प्रोवाइड अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। लाइक आप जो है ये अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप वहां पर बेसिकली मेंटली फिजिकली प्रेजेंट थे, और आपने जो है इंटरव्यू में बराबर का पार्टिसिपेशन किया है। ऐसा नहीं है कि आप नर्वसनेस के वजह से जो है बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लैंक वहां महसूस कर रहे थे। आप मेंटली वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, फिजिकली प्रेजेंट थे बस। या फिर इंटरव्यू के दौरान आप इतने ज्यादा फियरफुल हो गए या नर्वस हो गए कि आप जो है कुछ आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एट द एंड रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका जो ये हेजिटेशन है, इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू इटसेल्फ, और इज इट बिकॉज यू डोंट थिंक दैट लाइक आपका जो नर्वसनेस होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि आपको खुद पर जो है भरोसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर कि आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जब आप हेजिटेशन दिखाते हैं, जब आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, और आप कह देते हैं नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये दिखाती हैं कि आप बस वहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए हैं, कि इंटरव्यू बस आपको दे दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन टाइम स्लॉट दे दिया गया है, तो उस टाइम स्लॉट पे आप पहुंच गए। और आप जो है यू आर वर्किंग लाइक अ रोबोट फॉर देम। ठीक है, आप एक रोबोट की तरह बस जो तैयारी आपको करवाई गई है, गूगल से जो क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं उसकी तैयारी कर ली है, गूगल से ही आंसर प्रिपेयर कर लिया है, और वही सारी चीजें जो होती हैं आपके रिजेक्शन का कारण बन जाती हैं। तो I hope this information was helpful for you, and
प्लीज हैव अ स्पेसिफिक प्रिपरेशन बिफोर यू गो इनटू एन इंटरव्यू। जब भी कोई इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारी बातें प्लीज ध्यान रखिए कि आपका बिहेवियर एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जो आप आंसर कर रहे हैं वो तो सही होना ही चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर कोई टेक्निकल हो चाहे एचआर क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो उसमें आपको सही आंसर ही देना है। लेकिन कई बार जो होते हैं स्पेसिफिकली एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सही आंसर कोई होता ही नहीं है, और वो आपको पर्सनलाइज्ड एटीट्यूड दिखाता है, आपका बिहेवियर दिखाता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे और अपने बारे में, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज को जान के जाएंगे, ताकि आप अपने बारे में, अपने आप को एज अ प्रोडक्ट, एज अ एसेट आप जो है सेल कर पाए उस कंपनी को। सो आई होप दिस मटेरियल वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।